ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਨਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਰਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ। ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਡਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ 'ਚ। बिल्कुल जी मिलती है, क्योंकि सिख भाईचारे के लोग जो हैं वो कुरान शरीफ का भी पूरा एहतराम करते हैं, पूरा उनका इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये तो सिख लोग तो करते ही हैं। बाकी ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरबानी है ना, वो सभी कम्युनिटीज़ लोगों के लिए है, वो पूरी इंसानियत के लिए है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। सभे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बारा जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। 1980 में मोहम्मद अजीज़ भाई 5 लाख बहुत बड़ी रकम थी। संघर्ष का सच प्रोग्राम वेखण वालियां सारियां संगतां नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस संघर्ष दे विच बहुत सारे लोग जिन्हां ने अपना खून डोलिया, किसी ना किसी ढंग नाल अपना योगदान पाया, जेलां कट्टियां, तशद्दद सहे। उहदे विच बहुत सारे ऐसे लोग सीगे जिहड़े गैर सिख कम्यूनिटी के लोग भी जिहड़े आ, उन्हां दा जिहड़ा योगदान आ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਨਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਰਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ, ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਡਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ। सिख समाज जो है तो वाकई में जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए हमने हिम्मत बांध के अपना। आपको भरोसा था कि ये सिख लोग जो बोलते हैं वो करते हैं? हाँ जी। तो वैसे भी आप तो कई सालों से जानते थे सरदार संतोष सिंह जी को। उनके साथ क्या है, बैठना उठना था, फिर हफ्ते में एक बार गुरुद्वारे चले जाएं, कभी लंगर खाने का मूड हो जाए तो जो हरदास जो गुरुवाणी चलती थी वहाँ, हाँ। तो उसको जो सुन के जो मन में जो बात आती थी। बिल्कुल जी, मिलती है, क्योंकि सिख भाईचारे के लोग जो हैं वो कुरान शरीफ का भी पूरा एहतराम करते हैं, पूरा उनका इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये तो सिख लोग तो करते ही हैं। बाकी ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरबाणी है ना, वो सभी कम्युनिटीज़ लोगों के लिए है, वो पूरी इंसानियत के लिए है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। सभे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बारह जियो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ जी, सारे एक साथ। उनको 4 दरवाजे हैं ना श्री हरमंदिर साहब के, हाँ जी, तो 4 वर्णा को साझा उपदेश वहाँ से मिलता है। हाँ जी, सभी जो लोग हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी को भी इतनी इज़्ज़त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं उनके पास सन 77 से नौकरी कर रहा था। अच्छा। और ज़्यादातर मैं उनके संतोष सिंह जी के पिताजी और संतोष सिंह जी के साथ ही ड्यूटी करता था। और जब भी इटारसी होशंगाबाद जाएं तो उनका काम ये था कि चलो एक दिन हफ्ते में गुरुद्वारा चले जाएंगे, बाकी टाइम ऐसी। सवेरे कुछ एक वो लगता था जिसमें गुरुवाणी होती रहती थी, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे रहते थे जो मन को वो होते थे कि ध्यान बाहर नहीं जाता था। उसको सुनता था तो एक दिन बोले मेरे को संतोष भाई कि क्या ऐसा कान को लगा के सुन रहा है, मतलब ये तो आवाज़ बढ़ा ले। अच्छा। समझ में आ रहा है तेरे पंजाबी? मेरा पंजाबी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके बोल समझ में आ रहे हैं। हाँ, तो रोज़ गुरबाणी सुने कर, तेरे को फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। अब ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को ये नहीं मालूम था कि 3 साल के बाद ये मेरे को काम आएगी। अच्छा। चलो अंदर भी चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन यही हुआ कि 2 बंदे हम वहाँ थे थाने में। तो जो बंदा, चलो वो पैसे वाले थे अवतार सिंह, तो उनको नहीं, जितनी मार मैं खाया, अच्छा, तो उसमें से थोड़ा सा प्रसादा उनको ही मिलना चाहिए था। तो उनको दूसरे रूम में ले जाके अलग कर देते थे। अच्छा। और मेरे को इतना बुरा मारते थे कि मैं क्या जाहिर करूं, पैखाना कर देता था। अच्छा। बाथरूम हो जाता था, चल नहीं सकता था ठीक से, पाँव तक सुजा दिए थे। दूसरे थाने लेके चले जाते थे। तो एक बंदा जो था कंपनी का, वो भी पुराना ड्राइवर है, भदौरिया नाम था उसका, मेरे से पुराना ड्राइवर था। हाँ। मैं उसको बोला, मैंने यार संतोष भैया कैसी तरह खबर करना कि मेरे को बहुत मार रहे हैं। वो किसी तरीके से आके या थानेदार से किसी मिल के कुछ बोलें। तो फिर उस थानेदार को खबर मिली कि संतोष सिंह ने आपसे ऐसा था बोले हैं, तो इसको
जल्दी से कोर्ट में पेश करो। मेरे को दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से अस्पताल भेज दिए। मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 1980 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 1980 ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो मारा कौन गया? एक सुदेश नीलम थी इसमें, एक लेडी थी कोई। जी हाँ, वहाँ सफ़ेद गाड़ी में बैठे हैं करके जो किसी ने खबर दी थी, हाँ। तो सफ़ेद गाड़ी इसने चेंज करके मर्सिडीज में बैठ गए अच्छा और वहाँ पे सुदेश नीलम को बैठा दिया सामने। अच्छा। तो यही समझे कि ये वही है करके। हाँ। अब जब वो गाड़ी से लगी तो गाड़ी को खींच के ले गए थे, छोटी से एक पुल था, हाँ। तो पुल में टकराई, इसके बाद कोई गाड़ी इधर उधर नहीं, तो उनके जो साथ जो जीप चल रही थी एक, उसने पहले फायर किया उधर से। अच्छा। तब अवतार सिंह ने फिर इधर से फायर करना चालू किया। हाँ। तो जो गाड़ी में भी था कोई बंदा निकाल रहा था, अपनी पिस्टल निकाल रहा था वो, तो इसने सीधा सीधा गाड़ी में फायर कर दिया, तो गाड़ी पे इसको गोली लगी सुदेश नीलम को, तो ये वहीं गिर गई मत्थे के बदले। हाँ, वो खत्म होगी मौके वो वहाँ ख़त्म हो गई। बाबा जी तीसरे नंबर की गाड़ी में थे, वो घूम के वापस एसपी के बंगले निकल गए। अच्छा, उस तो बाद तो आप लोग मौके पे ही गिरफ्तार हो गए थे? हाँ, थोड़ा सा आगे में जाके फिर हम पकड़ा गए। पकड़े गए, पुलिस आ गई चार सपेरे से, पुलिस पहले चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पहले साथ में थी उनके। पहले साथ में वो तो होगी, स्कॉट गाड़ी तो उनके साथ होगी। ठीक। तो उसको उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटेरोगेट किया। हाँ, आप बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा मार आपको पड़ी। जी हाँ। तो क्या वजह थी कि आपको ज़्यादा मारते थे, कि वादा माफ बनाना चाहते थे कि आप इन लोगों के वही खिलाफ? कोशिश कर रहे थे वो अच्छा। कि अब तेरे को कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ। तेरे को जो 4-5 लाख रुपए मिल रहे हैं, अच्छा। इसको तो रख, तेरी लाइफ बन जाएगी। हाँ। और तू इसमें साइन कर दे और हमारा गवाह बन जा। अच्छा। 1980 में मोहम्मद अजीज़ भाई 5 लाख बहुत बड़ी रकम थी। अपने को उतना समझ नहीं था, 300-350 रुपये तनख्वाह थी हमारी, अच्छा। तो ये लाख रुपए तो समझ भी नहीं आता था ना कि लाख रुपए होता क्या है। वाकई सही है। तो आपको 5 लाख रुपए की ऑफ़र थी कि तुम इन लोगों के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ तो तेरी तो लाइफ बन जाएगी। तो कभी मन में आया नहीं कि मैं ऐसा ही कर लूँ? आया मन में, जब ज़्यादा मार पड़ती थी। हाँ। तो मार को छोड़ के फिर जब वो बोलते थे तो थोड़ा आराम मिलता था, तो फिर मन बोलता था नहीं कि अच्छा। जिस सिख भाइयों के साथ जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। और अगर इनके साथ मैं नमक हरामी करूँगा तो फिर ये मुसलमान का एक नाम भी बदनाम होगा और जमेगा नहीं ये सब चीज़ें। वाह, क्या बात है मोहम्मद अजीज़ भाई, पूरी मुस्लिम कौम की तुमने मतलब इज़्ज़त रख ली है कि अगर मैं अपने सिख भाइयों के साथ चला हूँ इस काम के लिए तो मैं गद्दारी नहीं करूँगा, अभी मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा उनके खिलाफ। 5 लाख रुपया आज के 50 लाख से भी ज़्यादा थी उस टाइम रहा होगा, लेकिन पैसे की अहमियत अपने को इतनी नहीं थी। हम 3-3.5 साल के मुलाजिम थे। अच्छा। और कभी तनख्वाह तो लिया ही नहीं हमने। अच्छा। जब मर्जी आए संतोष भैया से ये कुछ पैसा चाहिए था, अच्छा। तो फट से निकाल के, ये ही नहीं पूछते थे कि तू वहाँ से कितना लिया है, कितना तेरा पैसा वहाँ एडवांस है, कभी नहीं। ठीक। जो पैसा मिल रहा है वो 700-800 रुपये हम ऐसे ही उठा लेते थे। ठीक। एक तो लन फन कुछ था नहीं हमारे में कि बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है, कुछ नहीं। अच्छा। जो पैसा घर में देना, ये बस कोशिश करते कि थोड़ा अच्छा पहने। हाँ। और बच्चों को अच्छा रखें। ठीक। एक लड़का था, एक लड़का उस टाइम डिलीवरी नहीं हुई थी। ठीक। बस हम मियाँ बीवी खुश रहते थे और पसंद से शादी किए थे, इसलिए थोड़ा सा हमको खला भी। ठीक। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ की माँ को और बीबी को पंजाब बुला लिए। अच्छा, आज एक बात जो बोली थी सरदार संतोख सिंह जी ने कि अगर तू पकड़ा जाएगा या कहीं मारा भी जाएगा तो तेरे पूरे परिवार की जिम्मेवारी हम उठाएंगे। तुम जेल में रहे 2-3 साल से ज़्यादा, और फिर वाकई संतोख सिंह जी ने निभाई वो बात? पूरा निभाया। एक छोटे से खबरे के मकान में जिसका 80 रुपये मकान किराया था, अच्छा, उससे निकाल के इतने बड़े मकान में, वो भी संत से बोलने से, संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाला के बोलने से उन्होंने बोले हाँ। कि इसको कोई मकान में ठीक से रखवाओ, ये गलत मकान में रह रहा है और मकान कोई ठीक नहीं है। हाँ। और इसकी माता जी को देखा हूँ, इसकी बीवी को देखा हूँ, रहन सहन भी कोई ठीक नहीं, थोड़ा कुछ
तो इतना बढ़िया मकान दिलाया 2 माले का, अच्छा जिसमें नीचे में किराएदार थे, ऊपर वाली बिल्डिंग में हमारे को शिफ्ट करा दिए। अच्छा तो जब तक मैं नहीं छूटा था, ठीक। जब तक उस बिल्डिंग में पूरा खर्चा पानी, अनाज तो ऐसा जाता था, हम तो 2 किलो 1 किलो खरीदने वाले आदमी, हाँ 25-25 किलो चावल, गेहूँ, आटा, तेल, अच्छा ये तो तनख्वाह से कई ज़्यादा था। वाह तो घर में आके सब बताएं, फिर हमारी माँ आके बताई मेरे को 1000 रुपये दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा नोट है। तो पुरानी औरतें क्या है, वो यहाँ पर वो थैली रखती हैं, हाँ उसमें रखते थे पैसा। अच्छा उस वक्त 1000 रुपया संतों ने बोला कि इनको पैसे दे के आओ, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला नहीं, और संतोष सिंह जी दे के आए। हाँ जी, नहीं बेबे आई थी। अच्छा वो 1000 रुपया जब दिया तो परिवार को तो 1000 रुपया 300 रुपया तनख्वाह लेने वाले पूरे बंदे। मोहल्ले भर में बता डाली उसने अच्छा कि वो आए थे, तो भी देखो इतना बड़ा बड़ा नोट दिए हैं, 1000 रुपये है। तब 1000 रुपये जिसके पास है वो तो वहाँ के लिए लखपति हो गया। 1980 में जो पुलिस मुलाजिम थे ना, जो टीचर थे, उनकी भी 600-700 रुपया तनख्वाह होती थी। तो नेचुरली जब आपको 1000 रुपया मिला होगा तो माता जी और आपकी घर की औरतों को तो लगा। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था जेल में अच्छा कि मेरी माँ को 1000 रुपये दिए हैं, और आप वो छोटी छोटी जाली है उसमें से दिखाई उसने पैसा। अच्छा मैं जेल में जाके आपको दिखाया आपकी माँ ने पैसे भी, ये 1000 रुपया। हाँ। अच्छा तो मैं बोला बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हाँ बेटा, मैं कभी इतना पैसा नहीं देखी थी, 1000 रुपये मिला है, अब मैं तेरे को क्या से अंदर से हाथ डाल के वो करूँ। अच्छा तो मैंने बेबे के साथ आना था। अच्छा तो बेबे को मुलाकात में अंदर मिलती है, क्योंकि वो B क्लास वाले हैं, इनकम टैक्स पड़ता है उनका। अच्छा। अभी MP के ठेकेदार हैं इतने बड़े। तो बोले उनको बोलना कि मेरे को अंदर साथ में लेके आएंगे। अच्छा सरदार सुच्चा सिंह जी आपके साथ थे जेल में, और अवतार सिंह जी भी सारे इकट्ठे थे एक ही जेल में? नहीं, मैं C क्लास में था, ये सब B क्लास में थे। ये बी क्लास में तो जो पढ़े लिखे हैं या वो मतलब लीडर लोग होते हैं उनको बी क्लास मिल जाती जी हाँ, B क्लास जिसका टैक्स इनकम टैक्स पड़ता है, ठीक है। उनको B क्लास मिलता है, B क्लास का खाना मिलता है। है। ठीक है। तो फिर कैसे खाना बना सारा, तुम मतलब इनसे तो अलग रहते थे, फिर कैसा चलता? नहीं, फिर वहाँ सुच्चा सिंह बोले जेलर से हाँ कि ये बंदे को कम से कम दिन भर के लिए हमारे पास भेज दिया करो। हाँ क्योंकि बी क्लास वालों को शक्ति भी मिलते हैं ना जेल में, तो कई बार होता है कि वो हमारा बंदा हमारे पास ही भेज दो। हाँ जी। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों, क्या है? बोले भाई देखो जेल है ये, तो जेल में ऐसा रहेगा। तो बोले जो उसको बीमारी हो रही है, हाँ तो उसके कपड़े में कीड़े हो रहे हैं, हाँ। वो अच्छी बात नहीं। तो ये इसके अंदर में क्या है, बारीक बारीक जूं हो जाती थी, अच्छा सफ़ेद सफ़ेद जूं होती है। अच्छा वो जेल में साफ सफाई नहाने धोने का अच्छा नहीं था प्रबंध? प्रबंध था, हाँ। लेकिन वो जो बिछाने के लिए जो देते थे, हाँ उसमें दूसरे कैदियों के जो गंदगी रहती हाँ, थी, हाँ। तो बारीक बारीक जो जूं कीड़े होते हैं वो चल चल के इसके कपड़े में घुस जाएं, इसके कपड़े में, तो फिर वो कॉलर के अंदर में, आस्तीन के अंदर में, अच्छा तो उससे हो जाते थे। वो कोई जहाँ जहाँ काटते थे वहाँ लाल लाल हो जाता था। अच्छा तो एक दिन दिखाया मैं, तो उसमें कुछ जैसे गुरजीत सिंह ज्ञानी हैं, रंजीत सिंह थे एक भाटिया, जी तो इन्होंने बोले सोचा कुछ करो, इसको बुलवाओ यार। तो फिर दिन भर के लिए मेरे को B क्लास बुलवाते थे, शाम के टाइम फिर वापस C क्लास, वहीं का कैदी मेरे को छोड़ने आता था और छोड़ के वापस जाता था। ठीक ठीक है। तो आप बता रहे थे कि जैसे आप उन सरदार सुच्चा सिंह जी का को आप तो जेल में भी उसको अपने मालिक की तरह रखते थे कि मैं मुलाजिम हूँ इनका, ये मेरे मालिक हैं, हाँ, तो उनके लिए खाना लेने जाते थे? खाना के लिए वो क्या है कि इस जेल में नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा। जिस पोजीशन में ये मतलब अपोजिट जो हमारी पार्टी थी, हाँ। निरंकारी, हाँ तो भजन सिंह निरंकारी मोतीलाल बोरा जो मुख्यमंत्री थे, हाँ उनका खास आदमी था। अच्छा तो वो इनको बोल के बोले इनका यहाँ पर दबदबा है, इनका ठेका या ठेका का चलता है शराब का, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो इन्होंने उठा के हमको जबलपुर जेल भेज दिया। अच्छा जबलपुर जेल में से पेशी हमको बोले इनका केस भी मंडला में डालो, दुर्ग में केस नहीं चलेगा। अच्छा तो जबलपुर जेल में जब गए तो दूसरे दिन जब उठे तो C क्लास में थे सब। सब वहाँ पर बी क्लास वाला उनको कोई सहूलत नहीं? कोई वो नहीं। तो वहाँ पर तीन जेल है, एक ही जेल के अंदर 3 जेल हैं। अच्छा तो सवेरे उठे तो ऐसे ही मुँह हाथ धो के खड़े रहे, तो आया कैदी, चलिए उधर, आप लोग कल आए हो ना, चलो वहाँ जा खड़े हो गए। तो सवेरे सवेरे चाय वाय नहीं देते वहाँ पर, पसिया देते हैं। अच्छा चावल का जो निकलता है गाढ़ा गाढ़ा जो रहता है, अच्छा वो छोटे छोटे कटोरे में सबको देते हैं। अच्छा वो चावल का पानी है? पानी, हाँ पंजाबी में पेछ बोल देते हैं उसको। पीछा, हाँ पीछा। हाँ तो वो उसको दिए तो चलो पी लेते हैं। वो कुल्ला उल्ला किए और थोड़ा सा ऐसी उंगली मार के दांत को धो लिए, पी लिए। 11 बजे फिर खाने के लिए खोले तो थाली लेके
अपनी अपनी थाली लेके जाओ, थली लगी थी बहुत बहुत सारी। तो एक जने वहाँ से लाइन से आते जाओ, तो मैं बोला आप कहाँ थाली लेके जाओगे, दो मेरे को। अवतार सिंह अपनी थाली पकड़ा, बलदेव सिंह अपनी थाली पकड़ा, कुक्की अपनी थाली पकड़ा, और एक और थे गुरजीत सिंह ज्ञानी, वो भी थाली पकड़े। तो मैं उनको बोला तो बोलता है नहीं नहीं चल, मतलब भैया आप बैठो। जब मैं थाली लेके गया वहाँ तो दो थाली कैसे लेके आया। मतलब हमारे जो सेठ जी हैं, समझो मालिक हैं, हाँ। यहाँ कोई सेठ और कोई मालिक नहीं चलता है। अच्छा। चलो वापस जा, मतलब दोबारा नहीं आऊँगा, ठीक। दे दिया उसने। अच्छा। शाम का जब खाना लेने गया तो वही बंदा कैदी, हाँ जी। वो एक चमड़े का ऐसा बेल्ट था वो, अच्छा। तेरे को मैं सवेरे मना किया था, फिर आया तू, तो उसने मेरे को मारा। तो सुच्चा भैया वहाँ से देख लिए, अच्छा। तो वो आए, तो बोलता है यहाँ पर कोई सेठ जी और कोई नौकर वोकर नहीं, हिसाब नहीं रहेगा, सब कैदी हो, कैदी से रहोगे, अपना अपना खाना खुद लो। अच्छा। ठीक है। तो वैसा थाली को सब फेंक दिया हो। तो मैं ऐसा तो मत करो। तो उसने मेरे को तमाचा मारा। तो सुच्चा सिंह मेरे को वहाँ बोले चल ठीक है, चलो वापस चल, खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। तो पेश कर दिया हमको जेलर के पास में। जेलर ने सुप्रिटेंडेंट के पास पेश किया। तो बोले हम लोग जो कि इनकम टैक्स पटाते हैं, इतने बड़ा शराब के ठेकेदार हैं, और आपके कैदी हमारे साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप एक काम करो, वहाँ जाके बैठो, आपको खाना मिल जाएगा। नहीं बोले हमको खाना खाना ही नहीं है। फिर वो अलग से एक ठो सामान वामान ला के दिए उन्होंने, उसमें बोले आप इसमें डब्बे में पैकेट है, आप ये खा, बी क्लास का खाना है, इसको खाओ। ये आपका कौन है? तो बोले साथ का ही है, हमारा वफादार बंदा है कौन? तो बोले ड्राइवर है। तो बोले ड्राइवर है, ड्राइवर जैसे रखो इसको, एकदम आग में मत चढ़ाओ, इस टाइप का बोला। तो बोले आप क्यों आग में चढ़ाओ, हमारा जब इतना साथ दिया, सब कुछ दिया है। तो बोले साथ बाहर होता है, जेल में नहीं होता है। ये बोल के वो मेरे को अलग कर दिए, उनको अलग दूसरे नंबर में डाल दिए। मंडला जेल जब आए हम, तो वहाँ पर मिस्टर तुली करके एक पंजाबी जेलर थे, उनके वजह से हमारे को वहाँ पर इतना सुकून मिला है कि पूछो मत। अच्छा। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद संत पहुँच गए। अच्छा, संत जरनैल सिंह जी भिंडरावाला पहुंच गए आपकी मुलाकात करने के लिए? वहाँ पहुँच गए। अच्छा। वहाँ के मुलाकातों को लाता हुई, और उसके मंडला जेल में? मंडला जेल में। अच्छा। तो उस टाइम मंडला जेल का लाकअप का करीब रहा होगा 40-45 बंदे थे उस पूरे जेल में। अच्छा। छोटा जेल था, उप जेल। तो बोले खाने वाने का क्या इंतजाम है यहाँ? तो बोले ये इधर खाना बनता है, हम लोग खुद बनाते हैं, अपना प्याज व्याज काट कूट लेते हैं और यहीं खाना बनता है, तो यहाँ लंगर कराओ। अच्छा। तो गुरजाल सिंह जी खड़े थे, गुरजाल सिंह गील कर वहाँ अच्छे फेमस आदमी थे मंडला के। तो उन्होंने बोले ठीक है जी, जैसे आप बोलो। बोले नहीं, यहाँ बोले हर इतवार को लंगर और अरदास कराओ। अच्छा, जेल के अंदर लंगर शुरू करवाना करवा दिया संत जी ने? हाँ, तो सवेरे वहाँ पर अरदास होती थी, अरदास के बाद अपना फिर लंगर चालू होता था। अच्छा। तो लंगर वो जेल के लोग भी खाते थे, और कुछ बाहर में थे, तो बाहर के लिए फिर एक पंडाल लगाया गया। तो फिर रोटियाँ ज़्यादा बनने लगी। मतलब बाहर जो मुलाकात के लिए आते थे परिवार लोग, वो भी खाते थे, और मंडला के लोग भी आके खाते थे। अच्छा। महाराजपुर करके जो था नर्मदा नदी के उस पार, उस टाइम पूरे पंजाबी लोग रहते थे। तो उनके यहाँ की पूरी माँ जी लोग, बहन लोग जो भी हैं, सब आके अपना आटा गूंदना, रोटी बनाना, दाल बनाना, प्याज काटना, मतलब वो सब लोग सेवा करते थे लंगर में? सेवा करते थे। वहाँ कम से कम में तो 200-250 लोग खाना खाते थे वहाँ। वाह, क्या बात है। संता ने तो फिर जंगल च मंगल लाता। हाँ, तो फिर वो जेलर से मिले मुलाए, फिर हम लोग से मिले। अच्छा, संत जी जब आपसे मिले तो कैसे मिले? वो मैं खड़ा था अलग से, अच्छा तो बोले कौन कौन हो आप लोग, ऐसा करके। वो राम सिंह जी पूछे बात, जी। ये बंदा कौन है? तो बोले ये अजीज, बोले ड्राइवर यही है, आप उत। अच्छा। मैं गया, फिर उसको हाथ पाथ फिरे सर पे, क्या नाम है तेरा? बोला अजीज मोहम्मद। बोले तू इतनी सी उम्र में ट्रक चलाता है? मेरा चलाना पड़ गया। बोले कोई गल नहीं, तेरे साथ सारी पंजाबी कौम, सिख कौम तेरे साथ में है, समाज है, कोई डरने और घबराने की बात नहीं। सही। अगर तेरा जो भी कुछ होता है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर बहुत सुखी से हूँ, बस मेरी ये फैमिली बैठी है। वो लोग वहीं थे। अच्छा। मेरी बीवी भी थी, मेरा बच्चा भी था। उस टाइम मेरा बीवी का दूसरा बच्चा नहीं हुआ था, वो पेट से थी, और माँ थी हमारी। बोला बस इनका ख्याल रख ले बाबा जी। बोले इसको कोई फिक्र मत कर, इनका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। वहाँ से जो बात हुई, उसके बाद तो फिर वो जो चला इनका, तो इन लोगों का उद्धार ही रहा, अच्छा रहे। और मेरी भी मांग थोड़ी बढ़ती गई अच्छी।
तो काफ़ी समाज में इज्जत मिली मेरे को। पूरे सिख समाज में आपको पूरा इज्जत मिली, घर बना के दिया, रोजगार के लिए टैक्सी लेके दी। अभी जो थोड़ा बहुत है ये 2-2.5 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं करीबन 8-9 महीने पहले तो इतने बुरे हाल में था कि किसी से 100 रुपये 200 रुपये मांग के अपना चला रहा था। अच्छा, वो तो बहन जी की मेहरबानी थी, संतोष सिंह की बेटी हैं। अभी ऐसी पोजीशन क्यों हो गई? टैक्सी नहीं है अभी आपके पास? नहीं है, अब तो मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन जब जेल से रिहा होने के बाद? हाँ, उसके लिए फिर मेरे को अवतार सिंह बोलते रहे ठीक, कि पंजाब जाएंगे, तेरे को बुलाए हैं संत ने, ऐसा है, तेरा पूरा उद्धार हो जाएगा। बस वो आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, आज ले जाएंगे, कल करते करते 40 साल गुजर गए, मगर कभी पंजाब, मैं ऐसे ही पंजाब आया हूँ। अच्छा, अपने मतलब बड़े बॉस को लेकर, यानी संतोष भैया के फादर सुरता सिंह ढिल्लो, उनको लेके आया हूँ। बाकी ऐसा खुद मेरी अपनी मदद के लिए मैं नहीं आया। जेल से छूटने के बाद संत ने जो बुलाए थे अमृतसर। अच्छा, जब 83 में 1983 में आपकी जमानत हो गई तो आप सब लोग यहाँ अमृतसर संत जी को मिलने आए? मिलने आए थे। अच्छा, बस उस टाइम मुलाकात हुई, सर ऊपर वो भेंट किए, उसके बोले अब तेरे को कोई फिक्र नहीं करना है, तेरा सब उद्धार हो जाएगा। संत जी से क्या बातें हुई, वो बातें थोड़ा खुल के बताइए। संत से यही बात हुई, देख देखो एक मुसलमान बंदा है और तूने इतना अच्छा काम किया है। हमारे कौम में एक से एक लोग हैं, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं किया जो तूने हिम्मत किया है, और तू किसके कहने से किया ये? मेरा ये संतोष सिंह जी के साथ रहता था मैं, उन्हीं के साथ में एक बार आप इटारसी में आए थे तो वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई थी, तो सिर्फ दूर से ही मैं आपके पाँव छू के हट गया था। तो मैं आपसे बहुत खुश था और अच्छा भी लगता था। जो आप वो तीर पकड़ते हैं, एक अच्छा, स्टील की तीर पकड़ते थे, मैं उसको देख के बड़ा खुश होता था। आपको संत जी का वो तीर बहुत अच्छा लगता था? बहुत प्यारा लगता था। Very. हाँ, क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से वो जो उनके हाथ में बहुत खूबसूरत लगता था। मैं कि एक हथियार है समझो वो भी। हाँ। और जो कृपान लटकी है वो तो ठीक ही है। हाँ। लेकिन वो जो तीर रहता था उनके हाथ में, उससे बहुत ही वो, तो संतोष भैया बोलता था, मतलब ऐसा तीर मेरे को बोला, बोले नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बोले संत का है, वो उन्हीं के पास रहेगा बोले। अच्छा, आपको भी लगता था कि मैं भी ऐसा तीर रखूं? हाँ, कोशिश करता था मैं। आपको देखने में जो अच्छा लगता था? कोशिश करता था ऐसा। अच्छा, तो ऐसा ये चीज़ संत जी के हाथ में अच्छी लगती है, उनके पास ही रहनी चाहिए। उस टाइम मेरे को फिर उन्होंने बोले कि इस तरह का जो भी है हाँ, हम तेरा इंतजाम करवा देते हैं। ठीक, मतलब ठीक है जी। तो पूछा लोग कदों जा रहे हैं, कब जाने वाले हैं लोग? ठीक, तो बताया किसी ने कल परसों निकल जाएंगे वापस। ठीक, तो ठीक है बोले, मेरे से मिलवाना, उसके बाद भेजना। ठीक, तो उस टाइम संत शायद मेरा ध्यान हट गया होगा उनसे, या किसी काम से कहीं चले गए हैं, फिर वो मुलाकात नहीं हुई। जो मेरे को स्वरूपा भेंट किए थे वहाँ पर, अगर संत वहाँ मिल लेते या तो बुलाते तो मैं शायद आपके पास आज यहाँ नहीं बैठा होता। संत मेरे को और कुछ करके निपटा देते, ऐसा प्रबंध कर देते, प्रबंध कर देते मेरा पूरा। लेकिन कोई बात नहीं है। अब जो संतों ने बोल दिया है ना, संत जी ने, वो आज भी संगत करेगी। इसलिए यही बोलना चाहता हूँ कि जो इतने बुरे दिन अभी देखा हूँ 5-6 महीने पीछे, वो बर्दाश्त से बाहर हो गए थे कि क्या किया जाए। लेकिन नहीं मालूम कैसे कैसे घर में सवेरे रात के सब्जी तोड़ते बैठा था। अच्छा, एक कार आई तो उसमें कोई सतवंत सिंह करके आए थे। वो पूछे वो अजीज अहमद का घर कौन सा है? मतलब अजीज अहमद नहीं, अजीज मोहम्मद। तो बोला मैं ही हूँ। अरे बोले तुमको बड़ा ढूंढते ढूंढते पहुँचे, किसी ने बताया कि आप गांव में रहते हो। तो बोला बोलिए। बोले हमको पंजाब से एक बहन जी ने फ़ोन करके बोले हैं कि उनका पता करके बताओ, हम 2 रोज़ से ढूंढ रहे हैं आपको। अच्छा, मतलब कौन बहन जी? बोले मैं भी ठीक से नहीं जानता, तो ये लो बात कर लो। ठीक, तो वो संतोष सिंह जी की लड़की थी, अच्छा, पिंकी करके, तो उनसे बात ये हुई। संतोष सिंह जी खुद और उनका परिवार वाकई उसके साथ आपका कुछ है? वो अलग ही- कोई ऐसा कुछ रूहानी रिश्ता ही है उनका अलग कि अब ही- उनकी बेटी ने आपको बुला लिया पंजाब में? हाँ, वो बचपन से देखे थे मेरे को। अच्छा, वो उस टाइम छोटे थे, वो देखते थे कि मैं अक्सर घर का काम कर रहा हूँ या कुछ लाने जा रहा हूँ या हमेशा पापा जी के साथ में हूँ, तो वो चेहरा उनको याद था मेरा। तो उन्होंने ये सोचा कि जब उस बंदे को इतना पैसा मिल रहा है तो एक मुसलमान बंदा ही पड़ा है, तो क्यों ना उसको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प किया जाए, जिंदा है कि मरा है कि है कि नहीं है। तो ये कोशिश करके मेरे को ढूंढवाया ना, तो मैं मिल गया और मिला। जो वो अवतार सिंह जी के साथ मुलाकात हुई थी एक चैनल पे, तो अवतार सिंह जी ने आपका जिक्र नहीं किया? आपकी स्टोरी में तो हम उनका जिक्र कर रहे हैं बार बार। लेकिन वो तो अवतार सिंह जी को समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं किए।
यही होना मेरे चाहिए था। साथ में मेरे से ज़्यादा परेशान बेचारा एक बंदा और था जो ख़त्म हो गया अभी अच्छा। अटैक में। अच्छा। हरिंदर सिंह की कुक्की जो सुच्चा सिंह का सग्गा साला था, हम्म। वो भी कभी उसने कोई लड़के ने लनफन नहीं किया, वो भी ना किसी से मदद मांगा ना कुछ किया, वो अपना कैसे भी चला रहा था काम। लेकिन ये भी बंदे ने, अवतार सिंह ने भी कोई मदद नहीं की उसकी। मेरे घर में जाते थे सिर्फ सहारा देते थे कि हाँ तेरा ये करवा देंगे, तेरा वो करवा देंगे, तो फ्लाइट में तेरा टिकट बन गया है, फलाने दिन अपन को चलना है। ठीक। कोरोना के नाम से बहाना आ गया। हाँ नहीं, कोरोना की तो मुश्किल आई, वो तो सारी दुनिया में चलो थी। ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड कोरोना आ गया, फिर चलो, फिर मैं बोले तो दोनों में झंझट हुई। मैं गया घर तो उसकी बेगम बोली कि भैया आप अंदर आके बैठो, अंदर बात करके। हाँ हाँ जाओ, दोनों बहन भाई बैठो अंदर। वो मेरे को राखी बांधती है। अच्छा। अवतार सिंह की जो मिसेस है, मतलब सुच्चा सिंह की बहन, हाँ। वो राखी बांधती है। ठीक। तो अंदर जाके हाँ जाओ, दोनों बहन भाई बैठो, गप्पे सप्पे मारो अपने आपस के। मतलब क्या चीज़ है गप्पे, जाओ जा 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 बैठ अंदर। चले गया, मैं अंदर बैठ गया। तो बोले आप एक काम करो, तैयार हो, चलते हैं। मैं ठीक है। 3-4 दिन के बाद मैं फ़ोन लगा के पूछा, मैं दीदी कब तो ये चलना है? बोले भैया वहाँ तो उन लोगों का किसान आंदोलन चालू हो गया है, तो पूरा पंजाब खाली है, तो आप नहीं जा सकते। तो बोले इनका ये ख़त्म होने दो, फिर अपन प्रोग्राम बना के चलेंगे। तो वो फिर चल ही रहे हैं, अभी तक कोई पता वो नहीं। तो लंबा चला फिर किसान आंदोलन भी। कोई बात नहीं, अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज आप हमारे पास पहुँचे हो और हमें पता चला है, और आज हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला है कि मोहम्मद अज़ीज़ जो है उसने सिख पंथ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की है। आपको पता उस गुरबचने ने क्या किया था? 13 सिख 1978 में यहीं अमृतसर में शहीद कर दिए थे। और जो पंजाब में इतनी माओं के बच्चे मारे गए हैं, जो पुलिस वाले मारे गए हैं, और भी सुरक्षा फोर्सों वाले लोग मारे गए हैं, ये सभी शुरुआत उसी की हुई है। नहीं तो पंजाब बड़ी सुख शांति से रह रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी। आपने 5 लाख रुपया ठुकरा दिया उस वक्त, बहुत बड़ी रकम थी। ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी। और उसके बाद आपको कोई कभी मन में आया यार मैं कहाँ ये सिख लोगों में फंस के अपना सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली? कभी ऐसा मन में आया? मन में तो आया नहीं, लेकिन फिर भी जो इस समाज से हाँ जी। जो सम्मान और जो इज्जत मिली है, हाँ। तो उसके सामने पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। वाह क्या बात है। इतना सम्मान मिला है, इतनी इज्जत मिली। आज कोई भी बंदे मिलते हैं कहीं भी, सत श्री अकाल जी, अच्छा लगता है। आपको सारे इज्जत करते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। आज के बाद जब ये वीडियो देखेंगे ना लोग, अच्छा, तो आपको बच्चा बच्चा पहचानेगा और आपकी जो लोग और इज़्ज़त करेंगे। मोहम्मद अज़ीज़ साहब, वैसे तो जो मेरी एनजीओ है ना, हमारी एक संस्था है कनाडा की, जब भी हम आप जैसे किसी कुर्बानी वाली फैमिली से बात करते हैं तो उन्होंने मेरे को एक अधिकार दे रखा है कि कम से कम 15,000 रुपया उसको ज़रूर देना है। अच्छा, खाली हाथ नहीं भेजना, जी, या उसके घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, कम से कम 15,000 देना। तो मैंने फैसला किया था भी इतनी दूर से आए हो, आपको 15 नहीं, आपको 25,000 रुपया दे देते हैं। लेकिन बड़ी मेहरबानी है। नहीं, बड़ी मेहरबानी तो अभी और बढ़ेगी, जी, क्योंकि अभी मैंने फैसला कर लिया आपसे बात करते करते भी इतना बड़ा काम किया है तुम्हें। संत तो बोलते थे कि जो इसको ख़त्म करेगा उसको सोने में तोल दूंगा मैं, ऐसा था उनका बोल। वो हमारे तो आज मैंने विद ड्यू रिस्पैक्ट, और मैं माजरत चाहूँगा, मैं अपनी संस्था के सारे मुखी भाई मनजीत सिंह भिंडर होना को, मैनू लगता है कि वो भी मेरे शायद इस फैसले तो खुश होंगे। मोहम्मद अजीज़ भाई, अब मैं आपको 50,000 रुपया देने वाला। बहुत बहुत मेहरबानी पूरी कौम की और सिख समाज की, जो आज इस मुसलमान बंदे को इतना सम्मान, इतनी इज्जत, और वो बहन जी की जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलाए हैं, मैं उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूँ और इस कौम का भी इस्तकबाल करता हूँ, अपने परिवार की तरफ से भी और अपने तरफ से भी। मैं क्या बताऊँ, मैं ये खुशी के जो आंसू मेरे निकल रहे हैं। मेरे को इस समाज से जो मिला है, अपने समाज में कभी कुछ नहीं मिला। मैं बहुत मेहरबानी, बहुत खुशी है मेरे को। और मैं एक आपको भरोसा दिलाता हूँ मोहम्मद अजीज़ भाई कि अभी 2.5 लाख का कर्जा है तुम्हारे सर पे। जी हाँ, 50 तो आज हो गया, 2 लाख रह गया। जी, ये 2 हफ्ते भी नहीं लगेंगे
तो ये भी पूरा आ जाएगा। अपना नंबर बोलो, नंबर अपना याद है आपको? मोबाइल जी हाँ, का मोबाइल नंबर बोलो जिस पे व्हाट्सअप चलता है। 702 702 43 43 777 777 जी 65। 65। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 9406657151 94076 57151। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਜਸਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹमेशा करती रहेगी। और मोहम्मद अजीज़ साहब, आप लोग, तुम लोग कह रहे हो कि मैं पूरे सिख समाज का आभारी हूँ, धन्यवाद दे रहे हो, और पूरा सिख समाज आपका आभारी है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, इतना तशद्दुद सहा, इतने जुल्म सहे हमारी कौम के लिए, और पूरा सिख समाज आपका आभारी रहेगा। और आज की ये वीडियो के बाद पूरी दुनिया में आपको पहचानेगी। आपके इस फ़ोन पे लगातार घंटी बजती रहेगी। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर में कभी कोई मुश्किल आए तो हमारा नंबर भी आज आपके पास रहेगा आज से। तो बस आप एक कॉल कर लेना। और वो जो बेटी है सरदार संतोख सिंह जी की, भैन जी हरप्रीत कौर, उनका नंबर तो आपके पास है ही। तो लगातार हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। तो बस सतगुरु सच्चे पातशाह का हमेशा शुक्राना करते रहना। हाँ जी, शुक्रगुजार उनका काफ़ी। और 3 जैसे और परिवार हैं, जैसे वो सबसे संतोष सिंह के छोटे भाई जो हैं जी त्रिलोक सिंह ढिल्लो और पप्पू, जी। मैं ख़त्म हो गया था, मैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा। थोड़ा कम दिखता था जी, तो गाड़ी से टकरा गया था, तो सब सर्वर फट गया था, कमर अमर। ठीक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक। वो त्रिलोक सिंह ने, मेरे की बीवी उसके पास रोते हुए गई हाँ जी। और बताई ऐसा ऐसा है। उस लड़के ने पूरा इलाज करके मेरे को, त्रिलोक सिंह ने आज यहाँ खड़े कर दिया। और दूसरा कनाडा वाले और अमेरिका वाले जो भी मेरे को किए हैं, आज गाड़ी दिए हैं, सम्मान दिए हैं, मेरा मकान खड़े किए। और जो 2.5 लाख रुपये बचा, 6 लाख रुपये दिए थे, अच्छा 2.5 लाख रुपये जो बचा था उसकी भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ जी। कि अगर वो सब हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊँगा। और अभी 2.5 लाख का तो 2 ही रह गया। हाँ जी मैं अब आगे की ज़िंदगी जो है सुकून से जी लूँ, ठीक। बस यही आप सब चाहता हूँ। और अगर कुछ गलती हुई होगी तो मेरे को माफ़ करना। कोई गलती नहीं हो सकती। तुम जैसे कुर्बानी वाले जो हमारे मुस्लिम भाई हैं ना, उनके सामने हमारा सर हमेशा झुका रहेगा और एहतराम में। और आपकी जो कुर्बानी है उसको हम हमेशा सल्यूट करते रहेंगे। पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया में की नज़रों में आज आपका जो रुतबा है ना, बहुत बड़ा, बहुत बुलंद हो जाएगा। जब ये वीडियो पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे सिख समाज के लोग देखेंगे तो वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। साध संगत जी, गुरु नानक लंगर सेवा सोसाइटी इंटरनेशनल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਦੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਹੱਲਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 9407 57151। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। अजीत साहब को संगत का धन्यवाद करना चाहते हो तुसी? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं आप लोगों का, जो इस कौम से मेरे को सम्मान और इज्जत मिली है, और जो यहाँ आया हूँ आज इतना खुश हो गया हूँ कि कल कोई भी काम सिख समाज मेरे को बोलेगी मैं पीछे नहीं हटूँगा, करने के लिए तैयार रहूँगा। आप मेरे हाथ अपने सर पे रख दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह जी वाह, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।